थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं पहले। सो बियर डिजाइन में एक होता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और एक होता है बियर क्राइटेरिया, ठीक है। इन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया द बीम स्ट्रेंथ should be greater than equal to P effective. This is the basic concept, है ना। In the Beer criteria, SW should be greater than equal to P effective. This is the criteria. Okay. When we calculate P effective, when we calculate P effective, so there are two. One basic load is PT. It is the tangential force. है ना? When it is multiplied by service factor, so it is PT dash CS. When it is divided by CV, means it is considering the velocity. है ना? Velocity factor, which is depends on velocity again. है ना? The formula for the velocity factor are different. CV equal to 3 by 3 plus V when velocity is less than equal to 10 meters per second. ठीक है? It is 6 by 6 plus V when velocity is between 10 to 20. Between 10 to 20. It is 5.6 by 5.6 plus root V when velocity is greater than 20 meters per second. These all formulas are given in the data book. So this velocity factor having different formulas for the different velocity range. So when we divide PT divided by CV, then it converts into P effective load. So this load is basically a dynamic load which has taken consideration of the velocity. So P effective is basically dynamic load, right? So for calculating the dynamic load, there are two methods. For calculating the dynamic load or effective load, there are two methods. One is velocity factor method. One is velocity factor method, and second one is Hurley-Buckingham method. Hurley-Buckingham method. Hurley-Buckingham method. Now, in the yesterday class, in the Beer theory, again Hurley-Buckingham have done some work. So Hurley-Buckingham also have done some work in calculating the effective load. है ना, दोनों जगह पे उसने काम किया. In calculating the effective load also and calculating the wear strength also. Right? So today we will do numerical. So when we calculate by velocity factor method, the formula is P effective is PT CS by CV. Okay. When we calculate the effective load by Hurley-Buckingham method, the formula is P effective equal to 21V CEB plus PT. CEB plus PT. So it is CEB plus PT. PT is again the tangential force divided by 21V CEB plus root PT. Root CEB plus PT. What is this? Under root of CEB plus PT. Under root of CEB plus PT. And there is a plus sign over here. 21V plus under root of CEB plus PT. So in this formula, V is the baseline velocity, as we have used in velocity factor also. V is the baseline velocity. B is the phase width. PT is the tangential load. We are very much clear about these parameters. This E is the error in the gears. Error in the gears. Or you can say it is the sum of the errors in the pinion and gear. There are two gears. So during manufacturing, there are always some errors present. कोई भी चीज बिल्कुल accurate 100% ideal नहीं बन सकती.
So in this again there are some errors, है ना? So due to those errors, when there is a contact between the teeth, so there is an increase of the effective load due to that errors. So early Buckingham has considered that error part also. Velocity factor method, the errors are not considered. They have considered only the velocity factor. But here the velocity factor is also considered, but the velocity impact is also considered along with the errors in the gears is also considered. So gears can be manufactured by different methods. लामिस कोरम वो मैकेनिक्स का है। नहीं अगले बकिंघम लुईस इक्वेशन not lapping, that is here strength criteria, that is for given by Lewis. तो कई सारे साइंटिस्ट हो गए यहाँ पे, लुईस का भी वर्क है, अर्ली बकिंघम का वर्क है, एक न्यूमैन इक्वेशन का भी हमने यूज किया था, है ना, हर्ट्ज थ्योरी का भी यूज है कॉन्टैक्ट स्ट्रेस में, देयर इज हर्ट्ज सैंडविच, है ना, उसका भी यूज है। So errors are gears are manufactured by different methods. ठीक है? So when we minimize the error in the manufacturing or in the profile, involute profile, so जितनी ज्यादा एरर कम होगी उतना ही इफेक्टिव लोड कम बढ़ेगा। यदि एरर ज्यादा होगी तो इफेक्टिव लोड, डायनामिक लोड ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, ज्यादा इंक्रीज होगा। तो जहां एप्लीकेशन में जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका हम ग्रेड तय करते हैं। गियर्स के बहुत सारे ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ठीक है, ये कॉमर्शियल कट गियर्स होते हैं। फिर ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 12। ठीक है, तो किसी ऑथर बुक में आपको ये मिलेगा कि ग्रेड 12 की एरर सबसे ज्यादा है और ग्रेड 1 की जो एरर है वो सबसे कम है। तो यदि हमारा गियर फेल हो रहा है, सपोज ग्रेड 8 के हिसाब से मान लीजिए हमने गियर को डिजाइन किया और हमारा इफेक्टिव लोड गियर स्ट्रेंथ से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ज्यादा आने पे क्या होगा, गियर फेलियर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गियर की ग्रेड को ग्रेड 8 की जगह हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड हमें डिसाइड करनी पड़ेगी ड्यूरिंग डिजाइन कि गियर हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रेड 6 और ग्रेड 5 और ग्रेड 4 so that its effective load will be reduced and it will save its design is। तो अर्ली बकिंघम ने गियर्स की प्रोफाइल में जो एरर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क किया। तो इनिशियल स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन में, क्योंकि पहले कुछ पता नहीं होता है, ना मॉडल पता है, कुछ भी पता नहीं है, तो अर्ली बकिंघम को लगाना बड़ा टिपिकल हो जाता है ना, क्योंकि आप एरर कब निकालोगे, जब आपको कुछ चीजें पैरामीटर्स पता हो, तभी आप एरर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनिशियल स्टेज में अर्ली बकिंघम मेथड नहीं यूज करते हैं। इन द गियर डिजाइन, इन द अर्ली स्टेज ऑफ डिजाइन, always we prefer the velocity factor method. When some parameters are known by this method, then we can apply early Buckingham to increase the accuracy in the manufacturing and reducing the effective load and increasing the life of the gears. ठीक है, तो ये मैंने एक समरी आपको दे दी है कि गियर डिजाइन में बस इतना ही काम रहता है। एक लिमिट इक्वेशन होती है जिससे हम एसबी कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्ली बकिंघम की वियर इक्वेशन होती है जिससे हम वियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। डायनामिक लोड करने के लिए दो मेथड है, एक वेलोसिटी फैक्टर है और एक अर्ली है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बहुत लंबा हो गया है ना, बहुत लंबा हो। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, calculate the factor of safety using velocity factor method, calculate the factor of safety using velocity factor method। तो केवल आपको इस वाले पार्ट पे काम करना है, आपको एसबी निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में पूछा है, पी इफेक्टिव निकालना है। अब पी इफेक्टिव के लिए क्या लिखा हुआ है, यूजिंग वेलोसिटी फैक्टर मेथड, तो आपको ये वाली मेथड अप्लाई करनी है। डोंट डू दिस, एग्जाम का एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया हमने, कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग अर्ली बकिंघम, तो यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन पी इफेक्टिव के लिए फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, पी इफेक्टिव में थोड़ी सी एरर है
It is not P effective, it is PD. PD, D for dynamic, है ना? तो P effective कैसे आएगा? P effective is driven by PT into CS. ये जो था PT into CS, PT into CS, यहाँ क्या था? सर्विस फैक्टर प्लस PD. PD is dynamic load. अर्ले बकिंघम ने बोला कि एरर्स की वजह से इतना पार्ट इंक्रीज हो जाएगा लोड में, सर्विस फैक्टर की वजह से सर्विस फैक्टर का इफेक्ट आ गया, प्लस ये अर्ले बकिंघम का इंक्रीमेंट आ गया। तो इस पीडी को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल लोड, इंक्रीमेंटल डायनामिक लोड। सो इट इज इंक्रीमेंटल डायनामिक। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, फाइंड द मॉड्यूल ऑफ द गियर यूजिंग वियर क्राइटेरिया। फाइंड द मॉड्यूल ऑफ द गियर यूजिंग, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, उसमें आपको वियर स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी, पी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। पी इफेक्टिव के लिए फिर दो मेथड है, तो क्वेश्चन में जैसा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। यदि वेलोसिटी फैक्टर से करना होगा तो वो कर लेंगे, अर्ली बकिंघम करना होगा। ठीक है, सो सारे क्वेश्चन इसमें से ही बनने वाले हैं। मतलब दिस इज द टोटल समरी ऑफ द गियर डिफेक्ट। ठीक है, यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देगा तो मॉड्यूल पूछ लेगा, ठीक है, और मॉड्यूल दे देगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लेगा। चेंज हो सकती है, समटाइम्स मॉड्यूल इज गिवन, आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लिया, या कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है, और भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट द बीम स्ट्रेंथ। बस क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, कैलकुलेट द बीम स्ट्रेंथ एज पर यूज इक्वेशन md सिग्मा v बाई, मॉड्यूल क्वेश्चन में दिया होगा घुमा फिरा के, जैसे फेस विड्थ 10m होती है, सिग्मा v SUT बाई 3 होती है ना, और y टूथ वेक्टर डाटा बुक से आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट द बीम स्ट्रेंथ। 1 नंबर में, 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, कैलकुलेट द वियर स्ट्रेंथ, तो सिंपल बस एक फार्मूला लगाना है। SW का फार्मूला क्या है? BQ dP के, BQ dP, और यहाँ पे SQ का क्या है? MD सिग्मा V। तो इस फार्मूले का यूज करना है। ये क्वेश्चन में दिया होगा। Q जो है रेशियो फैक्टर है। अच्छा, रेशियो फैक्टर में कल क्या हुआ था, हमने लिखा था 2ZP by ZP प्लस ZP, हमने यहाँ माइनस लिखा था तो शायद एक्सटर्नल बताया था, वो उल्टा है, चेंज कर देना, चेंज इट, है ना। यदि प्लस होगा तो एक्सटर्नल और माइनस होगा तो इंटरनल, ये चेक करो। एक्सटर्नल में प्लस होगा, चेंज इट, है ना, कल वाले फिगर में तो चेंज करो। ठीक है, अब गियर रेशियो क्या होता है? ZG बाई ZP होता है। तो यदि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम ZP से डिवाइड कर दें तो ZG बाई ZP, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? Q इक्वल टू 2 टाइम्स ZG बाई ZP होल डिवाइडेड बाय ZG बाई ZP प्लस 1, 2i प्लस i, ये हो जाएगा 2 टाइम्स i डिवाइडेड बाय i प्लस 1। इस तरह से भी फॉर्मेट कभी कभी यूज करते हैं, 2i डिवाइडेड बाय i प्लस 1। सिमिलरली इंटरनल के लिए 2i डिवाइडेड बाय i माइनस 1, 2i डिवाइडेड बाय i। ठीक है, सो दिस इज द टोटल सम। अब एक कीवर्ड और है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब नोट हो गया आपका? गुड। अब एक कीवर्ड है, उसका नाम है हंटिंग टूथ। हंटिंग दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज हंटिंग टूथ। गियर के केस में पिनियन और उसमें हंटिंग टूथ का क्या मतलब है ना? व्हाट डू यू मीन बाय द हंटिंग टूथ? तो हंटिंग टूथ का ये मतलब है कि मान लीजिए पिनियन पे 20 टीथ है, सपोज पिनियन इज हैविंग 20 टीथ, Z1, gear is having 40 teeth, so the gear ratio is 2। ठीक है, अब क्या होगा, पिनियन के 2 राउंड में गियर का 1 राउंड पूरा होगा। पिनियन 2 राउंड घूम जाएगा,
गियर एक राउंड हो गया, ठीक है। तो 2 राउंड के बाद सेम टूथ, पिनियन का सेम टूथ गियर के सेम टूथ से स्ट्राइक करेगा। 2 राउंड के बाद पिनियन का सेम टूथ गियर के सेम टूथ से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। फिर 2 राउंड बाद यही होगा, फिर 2 राउंड बाद यही होगा, ये रिपीटेशन प्रोसीजर है। तो जब अब मान लीजिए उस सेम टूथ में कोई इनएक्यूरेसी ज्यादा है, किसी पर्टिकुलर टूथ में मान लीजिए इनएक्यूरेसी ज्यादा है, तो इनएक्यूरेसी वाले टूथ बार बार स्ट्राइक करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो गियर की उस पीस के फेलियर होने की चांस बढ़ता है। और गियर असेंबली में एक पीस भी गया मतलब पूरा गियर, ठीक है। तो टू अवॉइड दोस टाइप ऑफ सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हंटिंग टूल का कंसेप्ट आता है, ठीक है। हंटिंग टूल में हम क्या करते हैं, 20 की जगह पर मान लीजिए कि हमने इसे 19 कर दिया, ठीक है, या इसको 20 रखा, इसको हमने 41 कर दिया। अपनी डिजाइन में हमने एक पीस बढ़ा दिया, एक डिजाइन ले लिया। तो अब बताओ कितने राउंड बाद सेम पीस स्ट्राइक करेंगे। अब जो सिचुएशन हो रही थी कि हर 2 चक्कर के बाद में, पीरियड के 2 चक्कर के बाद में गियर का एक टूथ सेम पीस से कॉन्टैक्ट होगा। अब कितने चक्कर बाद देखो गियर रेशियो तो पहले 2 था, अब गियर रेशियो आपका थोड़ा सा हल्का सा बढ़ गया है, तो बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा बढ़ने में क्या अच्छी बात है, ठीक है। हमें जो रिक्वायरमेंट है वही है, रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन जो स्ट्राइक टाइमिंग था वो टाइमिंग 2 बार की जगह पे मैं समझ रहा हूं 21 बार बाद ऐसी सिचुएशन आएगी। तो जो गियर 2 घंटे चल रहा था सर्विस लाइफ में वो 21 घंटे चलेगा, समझ रहे हो। जैसे 2 साल गियर की लाइफ थी तो 21 साल गियर की लाइफ है, वेलोसिटी रेशियो बढ़ा है, लेकिन जो टीथ स्ट्राइक हो रहा था वो तो 21 चक्कर के बाद, पिनियन के 21 चक्कर के बाद गियर से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो ये हमें बेनिफिट मिला बाय इंक्रीजिंग 1 टूथ, बाय इंक्रीजिंग 1 टूथ इन द गियर। तो ये जो टूथ हमने इंक्रीज किया है, दिस इज द हंटिंग, दिस इज द वेरी गुड कॉन्सेप्ट, पूछते हैं कभी-कभी, इसको ध्यान रखना। तो अब एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, लिखो a pair of spur gears, a pair of spur gears with 20-degree pressure angle, a pair of spur gears with 20-degree pressure angle consists of a 20-tooth pinion, a pair of spur gears with 20-degree pressure angle consists of a 25-teeth pinion. So alpha is 20 degree, the teeth on the pinion is 25, matching with a 60-teeth gear. So Z2 equal to 60. The module is 5 mm. Module is 5 mm. While the face width is 45, face width is 45 mm, all are mm. तो देखो यहाँ पे फेस विड्थ और मॉड्यूल में क्या रिलेशन है, 9m, 5 9 या 45, यहाँ 9m का है। जनरली ये 8m से 12m के बीच में होती है, नहीं भी होती है तो हम 10m मॉड्यूल करते हैं, अदरवाइज ये 9m दिया है तो 9m ही मानेंगे, व्हाटएवर इज गिवन, है ना। सो b इक्वल टू 45 mm. The pinion rotates at 500 rpm. The pinion rotates at 500 rpm. The gears are made of steel.
So N1 is 500 RPM and gears are made of steel and heat treated to a surface hardness of 220 bhn and heat treated to a surface hardness of 220 bhn. Brittle hardness number 220 है ना 220 bhn. Assume the dynamic load is accounted. Assume the dynamic load is accounted by means of the velocity factor. Assume the dynamic load is accounted by means of velocity factor. The service factor and the factor of safety. The service factor and the factor of safety are 1.75 and 2 respectively. 1.75 and 2 respectively. Calculate. Number 1, wear strength of the gear. Number 1 is wear strength of the gear. Number 2, static load that the gears can transmit. Static load that the gears can transmit without pitting. Static load that the gears can transmit without pitting. And third point is rated power that can be transmitted by the gears. Rated power that can be transmitted by the gears. That can be transmitted by the gears. So 3 चीजें हैं में एक स्टैटिक लोड निकालना है, गियर स्ट्रेंथ निकालनी है और थर्ड पॉइंट जो है पावर निकालना पावर है ना. And most of the data is given. So first point is very easy. SW BQ DPK यही फॉर्मूला है. So SW is BQ DPK. B is given 45 mm. Q is the ratio factor. एक्सटर्नल और इंटरनल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं गिवन होगा तो एक्सटर्नल मानेंगे. सो Q is given by 2I divided by I plus 1. अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है? Z2 by Z1. So 60 by 25. तो I की वैल्यू हो गई Z2 by Z1 means 60 by 25. 5 by 25 is 12. So it is 5 to the 10 2.4. ठीक है. So the gear ratio is 2.4. So by using 2.4 you find the ratio factor. 2.4 divided by 2.4 plus 1. How much it is coming? 1.41. और आगे पूरा 3 डिजिट तक ले लो. ये आगे 1.4176. 1.4176 नहीं है. 1.41176. तो 1.412 कर लो. 3 डिजिट के लिए 17 है तो उसे 2 करो. एक्यूरेसी थोड़ा अच्छी आ जाएगी. So ratio factor is known to you. So this is solved. Now dp. dp is the diameter of the pinion. So module is given, teeth are given. So diameter can be found. So diameter निकालने के लिए dp is m times zp. Module is 5, zp is 25. It is 125 mm. ठीक है. So dp is not a problem. Now K is the load stress factor. So load stress factor का बड़ा सा फॉर्मूला था कल
सिग्मा सी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, याद है कल मैंने बोर्ड पर लिखा था सिग्मा सी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा ब्रैकेट 1/e1 + 1/e2 डिवाइडेड बाय 1.4। फिर वो सिंपलीफाई हो गया था स्टील के लिए 0.16 तो क्या वो केस है यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, दोनों स्टील के बने हैं, प्रेशर एंगल 20 है, तो फॉर्मूला सिंपलीफाई हो जाएगा 0.16 yes 0.16 BHN by 100 whole square. So they say 0.16 BHN is given in question 220. So it is 220 by 100 whole square. Solve it. 0.7744. So this is key. Okay, you can calculate SW. बताइए कितना 6149 पॉइंट के बाद कितना है 63 कर लो 626 है ना तो 63 ठीक है। इसमें आंसर आ रहा है 6149.8 भंडारी में अनसॉल्व क्वेश्चन नहीं है वहां आंसर दिया 6149.8 तो ठीक है 0.63.82 नो प्रॉब्लम है ना चलेगा दौड़ेगा। So first part is now complete. Now you have to calculate the second part. So second part is static load. ठीक है न्यूटन not megapascal it is a force it is a newton है ना force है wear strength is the value of the tangential force that the tooth can withstand without bending failure ठीक है without bending failure। चलो अब स्टैटिक लोड निकालना है और पावर निकालनी है ठीक है पावर तो बहुत आसान है पावर का फॉर्मूला है ना क्या फॉर्मूला पावर का 2 बाई mt और 2 बाई mt डिवाइडेड बाय सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा किलोवाट आ जाएगा और mt को न्यूटन mm में यूज करना mt का यूनिट क्या रहेगा तो आप ये ठीक है। अब बताओ क्या आपको टॉर्क पता है यहाँ पे है ना पावर निकालने के लिए यू नीड टॉर्क क्या आपको आरपीएम पता है क्वेश्चन में देखो आरपीएम हाँ तो पावर तो दोनों जगह सेम रहती है ना लीनियर चाहिए किसी से भी निकाल लो तो 500 तो हम आरपीएम ले लेंगे एन की जगह पे। अब टॉर्क कैसे निकालोगे PT into d/2 ठीक है PT कैसे निकालोगे यस लुईस इक्वेशन का यूज करके ठीक है तो उससे आपका PT आ जाएगा वो सेकंड पार्ट कवर हो गया PT तो स्टैटिक लोड है और PT से फिर आप पावर निकालो तो आई थिंक आप कर लोगे इस क्वेश्चन को आंसर्स नोट कर लो मिला लेना है मैं आंसर्स बता देता हूं देखिए PT का आंसर है 840.41 840.41 मिला लेना मतलब आप निकालोगे तो चेक कर और पावर का आंसर लिख लो 2.75 किलोवाट 2.75 किलोवाट ठीक है तो आज के लिए अपनी तरफ से इतना ही इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे एक क्लास और लेंगे इस पर फिर जाएंगे कल का भी मॉडिफाई हुआ नहीं है अटेंडेंस और मैं नोट करने होंगे पेपर Yes. Attendance please roll number. बेटा आप बोल दो
12, 4, 3, 18. How many? 10, 11, 22, 45, 15, 19, 6, 21, 44, 30, 34, 41, 37, 45, 46, 8, 9, 59, 57, 17. ठीक है, थैंक यू। क्लास को लॉग आउट करना होगा।